Dear students, hello, how are you? Hope you all will be fine and you're doing well in your studies. We will do chapter 6 in science, that name is insect. So, today you will do study in a different way. I hope that you will enjoy it. So, let's start that insect chapter. Insect all has seen. आप लोगों ने सभी ने insects देखे हैं ना? तो everywhere if you will see in your home there also you will see so many insects are there like ant, cockroach and mosquitoes. These all are house flies. These are your insects. Generally everywhere you will find if you will go in the garden there also and at home also. Okay, so today we will do study how their body parts works, which kind of body parts they have, and some looks like insect but these are not put in the category of insects. तो बेटा आप आज हम क्या करेंगे, इंसेक्ट चैप्टर करेंगे। इंसेक्ट चैप्टर में जनरली इंसेक्ट्स कौन से होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स देखने में लगते हैं इंसेक्ट्स बट हमने उसको इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं डाला। कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, तो इन सब की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में चैप्टर रीडिंग करवाती जाऊंगी, साथ साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो क्लियरली आपको दिखता जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो पूछने के लिए आपने क्या करना है, मुझे कॉल कर लेना है। कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी आपको, तो आपकी मैम से ले लेना और आप मुझे कॉल कर लेना। तो देखो चैप्टर 6 इंसेक्ट पीरियडिक थर्ड। First of all, we will discuss about the insect. What is insect? So insects are usually the small creature. Insects are small creatures. If we will consider with the birds, birds are big creature. Birds तो बड़े हो गए और insects क्या है आपके छोटे हैं। ठीक है, तो most of the insects have wings which are not very muscular. इनके muscles नहीं होती है insects के, हम कहेंगे कि इनके wings होते हैं, इनके विंग्स हैं लेकिन मसल्स नहीं है, मस्कुलर नहीं है ये। Thus there is a limitations for their flight, इसीलिए ज़्यादा ऊंचे हाइट तक नहीं उड़ते हैं। Flight in the sense उड़ना, तो they are not able to fly at the heights because they do not have strong muscles. Muscles हैं ही नहीं, strong की तो बात ही खत्म हो गई है। तो some of the common insects which we can come across in our daily lives are ant, beetle, bees, flies, mosquitoes and cockroaches. Once see the pigs. देखो ये pigs हैं. That mosquito in evening or night you will see easily at home and outside of the home also. Honey bee. Sometimes only you have seen this honey bees. Wherever flowers are there, garden है, flower है, there you will see the honey bees. Ant on the floor you will see. Easily available everywhere. Then these are the beetles. Beetles also it will find in the grass or in the garden. Butterfly, you have seen the butterfly, na? So beautiful colorful butterflies are there that will seen in the garden also. Houseflies are always available everywhere. तो आप घर में भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप घर से बाहर है, मार्केट में है, रोड पे है, तो हाउस फ्लाइज तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो these things, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं, तो दैट पुट इन द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे इंसेक्ट्स हैं। तो अब इंसेक्ट्स के पार्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है, हाउ दे हैव द पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 legs, 6 legs होते हैं। इनको अपने 3 पेयर्स बोलते हैं, 2 को एक पेयर माना जाता है। तो इनके मोस्टली दे हैव 6 legs and 3 pairs. The body of adult insect is divided into 3 parts. अगर हम adult insect की बात करें तो इसके कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे पहले क्या है, हेड, फिर है थोरैक्स और फिर क्या है, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इंसेक्ट्स हैव एंटीना। इंसेक्ट्स के क्या होता है, एंटीना होता है ऑन देयर हेड। तो एंटीना का काम क्या होता है, दिस एंटीना इज अ थिन वाइप लाइक स्ट्रक्चर। वाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। आप देखो ये कॉकरोच का एंटीना है, जहाँ मैंने कर्सर लगा रखा है ना, ये कॉकरोच का एंटीना है। तो
फाइव लाइक स्ट्रक्चर होती है विच हेल्प्स द इंसेक्ट टू स्मेल एंड फील। कॉकरोच है, कोई इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, इनकी स्मेलिंग पावर बहुत होती है और ये स्मेल किसके थ्रू करेंगे, एंटीना के थ्रू। तो आप इसकी पिक देखो, ये रहा, ये एक इंसेक्ट को कंसीडर किया है हमने, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो क्या हेड है, ठीक है, और इस हेड के ऊपर देखो मैंने कर्सर लगाया है, वहां पे क्या है, एंटीना है। और एंटीना का काम क्या है, सेंस करने का, स्मेल लेने का, फील करने का। ये तो आपका क्या है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या है, ये थॉरेक्स, इससे नीचे वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है जहाँ मैंने कर्सर लगा रखा है, ये क्या है, थॉरेक्स है। उसके बाद जो लोअर पोर्शन है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन। तो इंसेक्ट से कितने पार्ट हुए, 3। फर्स्ट क्या है, हेड, फिर थोरेक्स और उसके बाद एब्डोमेन। और अब यहाँ देखो, हेड के ऊपर क्या है, एंटीना। अब इसके लेग्स कंसीडर करते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। तो कितने हो गए, 6 लेग्स। अगर पेयर करें तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो इसके कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं। और मोस्टली दे हैव विंग्स फॉर द फ्लाई। फ्लाई करते हैं ना इंसेक्ट्स, तो क्या है इनके, इसके लिए विंग्स लगे हुए हैं। तो हमने स्ट्रक्चर की है किसकी, इंसेक्ट्स बॉडी की। तो इंसेक्ट्स बॉडी मोस्टली कितने पार्ट होते हैं, 3। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इनके पास हेड में क्या लगा है, एंटीना। एंटीना सेंस करता है, फील करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विंग्स दे विल फ्लाई, विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स क्या करेंगे, मूव करने में हेल्प करेंगे और फ्लाई करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या है, insects have wings. These wings do not have strong flight muscles. Wings की muscles है ही नहीं, ठीक है। Flight muscle का मतलब उड़ने के लिए strong muscles की जरूरत है, तो इन insects के पास strong muscles नहीं है। Hence they fly only for a short interval and short distance. थोड़ी सी distance तक उड़ेंगे और थोड़ी सी देर के लिए ही उड़ेंगे। इनकी फ्लाइट क्या होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ना ज्यादा ऊंचा उड़ेंगे, ना ज्यादा दूर तक जाएंगे, ठीक है। Insect have a hard outer covering called the chitin. इसमें क्वेश्चन आ जाता है, वन वर्ड आंसर है। तो इंसेक्ट्स का जो बॉडी पार्ट है जो हार्ड है, दैट इज नोन एज अ चितिन ऑन देयर बॉडी, ठीक है। चितिन कहाँ पे, मैं इस पिक्चर से दिखाते हैं आपको चितिन कहाँ होगा। ये तो पार्ट बता दिए, इसके आउटर लेयर जो है वो क्या है, चितिन है, ठीक है। तो इसकी आउटर लेयर में को हम क्या कहेंगे, चितिन, और ये क्या है, हार्ड। अब हमने कंसीडर करना है कॉकरोच। एक एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल ले लिया हमने इंसेक्ट का। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कॉकरोच की, ठीक है। ये कॉकरोच है, सबने देखा होगा, मोस्टली आजकल तो घर साफ होते हैं तो कॉकरोच मिलते ही नहीं है। अदरवाइज वुडन फर्नीचर है, अगर आप काफी टाइम तक क्लीन नहीं करते हो तो कॉकरोच अपने आप रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये कॉकरोच है, देखो कॉकरोच की कितनी लेग्स है, 6। पेयर की बात करें, 3 पेयर है। इसके विंग्स हैं, सेम वे इसके क्या है, एंटीना है, ठीक है। तो कॉकरोच हैज अ सेट ऑफ एंटीना, ये इसका क्या है, एंटीना हो गया, व्हिच हेल्प्स इट टू लोकेट इट्स फूड। तो एंटीना से ये अपने फूड को क्या करेगा, सेंस करेगा, फील करेगा, तो ये अपने फूड को लोकेट कर लेगा। हेल्प्स इन मूवमेंट, और ये क्या है, सेंस करेगा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो ये सीधे सीधे मूव करता जाएगा। और जब एंटीना सेंस कर लेता है, आप देखोगे कि जब कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई भी आ जाता है कॉकरोच के आगे, तो ये हाइड हो जाते हैं, कॉकरोच छिप जाते हैं ना, हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, कहीं ना कहीं किसी फर्नीचर के नीचे या अलमीरा के नीचे, जहाँ भी स्पेस मिल जाता है, स्मॉल स्पेस, वहीं पे जाके ये हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच को सेंस करना होता है, सबसे पहले यहाँ से क्या क्या सेंस करता है कि कोई डेंजर तो नहीं है, कोई फूड है, तो फूड है तो उसको लोकेट करेगा और उसको कैप्चर कर लेगा। और अगर इसको लगता है कि फूड नहीं है, कोई और चीज है, तो ये वहां से हट जाता है, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर किया है कि पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स होते क्या है, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका सेट कर लेती हूँ मैं, नेक्स्ट 57 58 पेज। देखो इंसेक्ट्स, अब यहाँ पे हम कंसीडरेशन करते हैं कि इंसेक्ट्स ही चल रहा है हमारा। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, अभी हमने कॉकरोच की बात कर ली, अब हम बात करते हैं बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई के पास क्या है, लॉन्ग सकिंग ट्यूब है इन देयर माउथ, दैट इज नॉन एज अ प्रोबोस्किस। तो इनकी
सक करने की कैपेसिटी होती है। बटरफ्लाई यूजेस देयर ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर। अब इसको समझो कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर इज अ जूस फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर जो होते हैं आपने देखा ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, लोटस है, रोज है ना। आपने फ्लावर्स ये जनरली और अवेलेबल होते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होता है, जूस होता है। एक हम ये कहेंगे फ्लूइड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस है, जिसको जनरल लैंग्वेज में हमने बोला फ्लावर का जूस है ना। तो ये क्या है, नेक्टर है। साइंस में हम इसको क्या बोलेंगे, नेक्टर। और बटरफ्लाई इसको सक कर लेती है। तो इसकी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसको ये अपनी ट्यूब को आगे ले जाएगी और फ्लावर के अंदर डालेगी और उसका जितना भी नेक्टर होगा उसको सक कर लेगी। ठीक है। हनी बीज भी ऐसा ही करती हैं। ये अपने उसको सक कर लेंगी और हनी बनाना शुरू कर देंगी फ्लावर्स से। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोबोसिस। ठीक है। तो एक लॉन्ग ट्यूब है बटरफ्लाई की, जिसका काम है नेक्टर को सक करना, दैट इज नॉन एज अ प्रोबोसिस। फिर हम मोस्ट इंसेक्ट हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स। जनरल बातें कर रहे हैं हम इंसेक्ट्स की, कि मोस्टली इंसेक्ट्स के पास क्या है, विंग्स के दो पेयर होते हैं। In certain cases, there is only one pair of the wings. That is common example क्या है, हाउस फ्लाई। हमने बोला कि जनरली दो पेयर होते हैं किसके, विंग्स के। लेकिन एक एग्जांपल है किसका, हाउस फ्लाई का, उसके पास क्या है, सिर्फ एक ही पेयर होता है। अब नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स डू नॉट हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते। अभी हमने विंग्स की बात करी। विंग्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, दो पेयर होते हैं। पर एक हाउस फ्लाई ऐसी है जिसके वन पेयर ही होता है। उसके बाद हमने बोला कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके विंग्स ही नहीं होते, ना सिंगल पेयर है ना डबल पेयर है। फिर हमने एक और एग्जांपल कंसीडर किया, आंट। ठीक है। और लोस, यानी जुएं जो होती है सिर के अंदर पड़ जाती है, बाल जब गंदे होते हैं ना आपके, तो उसके अंदर लोस हो जाती है। तो इंसेक्ट्स किसके पास विंग्स नहीं है, आंट के पास नहीं है और लोस के पास नहीं है। उसके बाद है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल, दैट इज नॉन एज अ स्पाइरकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। अब ये कहाँ से ब्रीथ करेंगे, देखो अपने नोजल कैविटीज हैं, इसको नोजल कैविटी बोलते हैं। वी विल ब्रीथ थ्रू द नोजल कैविटी। Same way insects body have holes, that is known as a spiracles. ठीक है। तो इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, थ्रू द स्पाइरकल्स। उसके बाद आता है आपका कि स्मॉल क्रिएचर्स दैट लुक लाइक अ इंसेक्ट बट नॉट इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में, जिसको हमें लगता है, हमने बोला ये क्या है, इंसेक्ट्स है, लेकिन हमने साइंस में उनको इंसेक्ट्स की कैटेगरीज में नहीं डाला हुआ। ठीक है। तो वो कौन से हैं, देखो आप इनकी पिक्चर देख सकते हो कि दे आर मैनी क्रिएचर्स विच लुक लाइक इंसेक्ट। बहुत सारे हैं जिनको हम कह देंगे इंसेक्ट, देखते ही हम कह देंगे इंसेक्ट है, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंसेक्ट्स। लाइक स्पाइडर। स्पाइडर कौन सी होती है, मकड़ी होती है, आपने देखा होगा घर में जाले लग जाते हैं। ठीक है। फिर एक स्पाइडर होगी, फिर है स्कॉर्पियन, बिच्छू जैसा बिच्छू होता है स्कॉर्पियन। फिर है सेंटीपेड, मिलीपेड, स्नेल, अर्थवॉर्म। ये सारे के सारे क्रिएचर्स कैसे हैं, दैट लुक्स लाइक अ इंसेक्ट बट दीज आर नॉट अ इंसेक्ट। ठीक है। ये हमने जनरली देखा होता है इनको, बट दीज आर नॉट पुट इन अंडर अ कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से, देखो ये पिक्चर है, जोक जैसा होता है, ये जनरली वाटर में मिलता है। ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीपेड है। ये आपका स्नेल, ये मिलीपेड, ये आपका इंसेक्ट जैसे ही होता है, कीचड़ में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, अर्थवॉर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, ये भी मड में मिलेगा। ये बिच्छू होता है स्कॉर्पियन, और ये स्पाइडर क्या है, मकड़ी होती है एक तरह से। ठीक है। तो ये के सारे क्या है, देखो ये कैसे देखने में लगते हैं, इंसेक्ट, बट दीज आर नॉट एक्चुअल insect. We will not put these in the category of insect. Okay. After that, next is questions. You will do these questions easily. आप अपनी नोटबुक में या बुक में कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो, unscramble the letter to make meaningful words. सबसे पहले क्या है, EISPCARLS, तो ये क्या है, स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स की स्पेलिंग है SPIRACLES। स्पाइरकल्स क्या है, टाइनी होल्स इन
द इंसेक्ट बॉडी। फिर है देखो ECENTIPD, ये क्या है? सेंटीपीड। दिस इज द काइंड ऑफ वी कैन से स्मॉल क्रिएचर। हम इसको इंसेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हमने इंसेक्ट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया, तो ये क्या है? स्मॉल क्रिएचर है। फिर है स्नेल, तो स्नेल की स्पेलिंग क्या है? SNEIL। ओके, आफ्टर दैट सी दिस लॉन्ग ट्यूब बाय विच बटरफ्लाई सक नेक्टर। तो बटरफ्लाई नेक्टर किसके थ्रू सक करेगी? स्पाइरकल से तो क्या होता है? ब्रीथिंग होती है। सेंटीपीड क्या है? टाइप ऑफ क्रिएचर है। फिर क्या है? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है थ्रू विच इट विल सक द नेक्टर। तो प्रोबोसिस से क्या है? बटरफ्लाई नेक्टर यानी फ्लावर के जूस को सक करेंगी। कॉकरोच, कॉकरोच नहीं है ये, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, Phillips हैं dash and dash are weaknesses that ant or loose। अब स्पेलिंग देख लें। Insect breathe through tiny holes called spiracles। तो spiracles के थ्रू क्या है? इंसेक्ट्स की बॉडी में होल होता है इंसेक्ट्स के, that is known as spiracles। उससे क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे। फिर a cockroach has a set of antenna। कॉकरोच के पास क्या है? एंटीना का एक सेट है, ठीक है। Next question is 4. Write whether the given sentences are true or false. The body of an insect is divided into 4 parts. 3 parts में है head, thorax और abdomen. So it is false. Ant and louse has big wings. No, ant and louse do not have wings. Centipede and millipedes are not insects. That is true. Scorpion have long sucking tube to suck nectar. नहीं, ये स्कॉर्पियन क्या है? नेक्टर को सक नहीं करता। कौन करता है? बटरफ्लाई, ठीक है। तो बटरफ्लाई नेक्टर को सक करेंगे, स्कॉर्पियन नहीं करेगा। अब ये नेम्स है, ये नेम आप अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं स्पेलिंग्स को इजीली। अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं इनको, तो ये आपका जो है बुक वर्क हो गया है। तो आप इनको, इनके नेम्स आप इजीली बुक से देख के लिख सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो आपका ये एक वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक